میرے پیپرس کھلا دروازہ کہ نہیں؟ ہاں پھر ٹھیک ہے. وہ ریس پہ دائیں ہاتھ سنو، شیشے کے اوپر دائیں ہاتھ پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی کلاس کے مان بعد آپ لوگ کچھ دیر ٹھہریں، کیونکہ جن کے اسکول کام کیا ہوا تھا نا وہ پرسکرائبر بنانے کا، ان کے کاغذات میں نے سرسری طور پر دیکھ لیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کلاس کے مان بعد وہ میں جن پہ کچھ تبصرہ کرنے والا ہے میں بتا دوں گا، تاکہ آئندہ کے لیے پھر سہولت پیدا ہو جائے، غلطیاں رپیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی کچھ کیا سیکشن میں؟ دو جو ہوں پہ اسٹال برڈس بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آرام کرتے رہیں؟ نہیں، بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی. اوہ ٹھیک ہے. کیا حال ہے اس کا؟ اب ٹھیک ہے. تو کیا دیا آپ نے؟ میں نے ہائپریکم دی تھی. بس آرنی کا نہیں دیا؟ آرنی کا بھی ساتھ دی تھی. اور درد وغیرہ تو نہیں ہے اسے. ٹھیک ہے. پلسٹر چڑھا ہوا ہے. اس کو پورے نسخہ نہیں دیا جو ہڈی جوڑنے والا؟ جی اس کی 1-2 خوراکیں دی ہیں، لیکن وہ کوئی درد نہیں ہے اسے. نہیں لیتے رہے ہم اس سے. میں نے کہا اسے لیتے رہو ایک خوراک. پین تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہڈی کی چوٹوں میں اگر بال آیا ہو یا ایسے ٹوٹ گئی ہو، غیر معمولی مفید ہے. یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی میں بھی جب ایسے مریض پیرالائز ہو گئے، ان کو فالج ہو گیا، تو لمبے استعمال سے وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے. ایک کیس تو آرمی کیپٹن کا میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو. ایک آج کل کینیڈا میں زیر علاج ہے، اس کے متعلق بھی ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا، اڈو صاحب کا بیٹا، وہ کبھی لمز بھی نہیں ہلا سکے گا، اور پھر وہ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کیے، پھر اٹھ بیٹھا، اب ویل چیئر پہ چلتا پھرتا ہے، اور مسلسل میرے سے رابطہ ہے فون پر، اور کہہ رہا ہے کہ میری ٹانگوں میں بھی اب جان آنی شروع ہوئی ہے، تھوڑا سا ہلنے لگ گئی ہیں. یہ وہ ہے بڑا آزمودہ نسخہ، اس کو زندگی سے ہر چوٹ میں جو ہے جہاں ہڈی پہ ضرب آ جائے اس میں استعمال کرنا چاہیے. آرنی کا شامل کر دیا اس میں تاکہ ارد گرد جو اعصابی تکلیفیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. سلیم میرا خیال ہے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک آیا نہیں. آواز آئی بڑے دھپ دھپ کافی زور کی، اس سے سلیم کا جسم لگ رہا ہے. السلام علیکم. کیوں جی پہنچ گئے؟ کس طرح توڑا دروازہ؟ کھلا تھا؟ اچھا شروع کریں پھر. آرنیکا سمفائٹم روٹا کیلکیریا فاس اینڈ ہائپریکم. ہائپریکم 4 تھی یا 5 تھی؟ سمفائٹم بھی سمفائٹم تھی ایک. ہاں جی حضور. آرنیکا سمفائٹم روٹا کیلکیریا اینڈ ہائپریکم دمچی کی ہڈی کے لیے خاص. ہائپریکم خاص طور پہ دمچی کی ہڈی. وہ تو اس کا اپنا اثر ہے نا، انڈیپینڈنٹ. جی جی. لیکن اعصاب کے ساتھ نہ، وہ ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی جو اعصابی رگیں ہیں ان پر بہت اچھا اثر ہے اس کا. اور پھر کناروں پر، انگلیوں کے پوروں پر، اور جو اعصاب جلد کے باہر ہیں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، پہلا چوٹ کا اثر ان پر پڑتا ہے، اس میں ہائپریکم بہت اچھی ہے. اور آپریشن کی جو تیز دھار آلوں کے زخم ہیں ان میں بھی بہت اچھی ہے. مگر میں نے ان میں سے چن لی ہیں ایسی جو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اکٹھے کمبینیشن کی صورت میں بھی ایک دوا کے طور پر کام کرتی ہیں یہ دوائیں. اب کیلکیریا فلور غالباً ہو رہا تھا، مکمل ہو گیا کہ شروع ہوا تھا؟ آخر میں حضور ہمارے سے چھاتی کی گٹھلیوں میں اور ٹھیک ہے کیٹریکٹ کے متعلق بالکل ٹھیک ہے. کیلکیریا فلور اور بیرائٹا کارو بہت مشابہ ہیں بہت سی باتوں میں، مگر دماغی طور پر کیلکیریا فلور بیرائٹا کارو سے بالکل ممتاز ہو جاتا ہے. کیلکیریا فلور کا مریض دماغی لحاظ سے بیکورڈ نہیں ہوتا، لیکن دانتوں کے لحاظ سے بیکورڈ ہوتا ہے، اور بیرائٹا کارو کے مریض کے دانت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں.
क्योंकि इसमें दांतों को बनाने का मादा पाया जाता है, इसलिए इसकी खास ज्यादती हो या कमी हो असर एक ही है। ज्यादती के नतीजे में जिस्म उसको कबूल करने से इनकार कर देता है, क्योंकि रद्द-ए-अमल दिखाने लग जाता है। कमी हो तो वैसे ही मादा मौजूद नहीं, इसलिए इसकी जो पहचान है बिल्कुल वाज़ेह है बरैट अकाब से। लेकिन गहरी इंड्यूरेशंस और ग्लैंड्स को फुला देना और सख्त कर देना, गले के हों या कहीं हों, छाती में भी बहुत मुफीद है। इस पहलू से एक दवा फाइटोलाका भी आपके जहन में आनी चाहिए, जो चोटी की दवा है इंड्यूरेशंस वगैरह में। ठीक है, जी आपको पढ़ा चुका हूं ना फाइटोलाका। जी सर। उसमें क्या खास बातें बताई थी जो अक्सर दूसरी दवाओं में नहीं मिलती? कोई ऐसे इम्तियाजी निशान जो सारे मटीरियल मेडिका में इसको एक मुमताज दवा बना देते हैं। तो श्री बेगम, आपका क्या ख्याल है? बड़ी देर से आपने हिस्सा नहीं लिया। ग्लैंड की सख्ती और जलन, वो तो कईयों में है, दूध बोनेपन के लिए, वो भी बहुत सी दवाओं में आ जाता है। गुठलियों के लिए। ये कोई बात नहीं बनी। हफीज साहब, अपना दिमाग लगाएं। अब आपकी बेगम फेल हो गई आज। हुजूर अगर दूध आपको बंद हो पहला जाए दफा मौका मिला है ऊपर आने का। हैं? बताओ। अच्छा, अब बताओ, वहां से एक अच्छी सी आवाज आई थी। क्या? औरतों पे दूध ज्यादा नहीं नहीं, बंद नहीं। हो जाए। इसमें दूध के जमने का जिक्र है, जैसे दही बन जाए और स्ट्रिंग्स पैदा हो जाती हैं। ये वो चीज है आपको मटीरियल मेडिका में और कहीं दिखाई नहीं देगी। समझे? दूध का जमना ये बात जाहिर करता है कि खून में एसिड्स हैं जो दूध बनाने वाले लैक्टिक ग्लैंड्स हैं, उनके जरिए से पेनिट्रेट कर जाते हैं दूध में और वो जमा देते हैं। या दूसरी बात यह कि कोई वायरस ऐसा है जो इस किस्म की चीज का काम कर, जैसे यीस्ट काम करती है, उस तरह का असर दिखाता है। वजह जो भी हो, ये एक इम्तियाजी बात है। दूसरी कोई और इम्तियाजी बात जिससे आपको फौरन फाइटोलाका दिमाग में आए, फाइटोलाका की खुशबू सूंघ लें आप उससे, या बदबू, जो भी चीज हो। अभी भी अगर पता न लगे तो फिर अफसोस है। नाक के कैंसर में फाइटोलाका का एक अहम मुकाम है, क्योंकि बहुत कम दवाओं में, और भी शाज़ के तौर पर मिलता जरूर है जिक्र, लेकिन अक्सर ये नाक का कैंसर भी रेयर है और इसका जिक्र भी शाज़ मिलता है। तो फाइटोलाका में ये बात पाई जाती है। ठीक है। आपको मैं मुशाबहतें बता रहा था, कौन सी? कैल्केरिया फ्लोर और ब्रैट अकाब की। लेकिन आखिरी बात क्या की थी डॉक्टर साहब, आप बताइए। पिछली मरतबा हुजूर हाँ जी, वो कैटरेक्ट के सिलसिले में आपने जिक्र फरमाया था, जिंकम सल्फ और कैल्क फ्लोर, और फिर ट्रिजियम के सिलसिले में भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात। कैल्केरिया फ्लोर में एक बात और भी आपको मैं बताई थी, याद रखने के लायक है, कि ये टॉन्सिल्स में ब्रैटा कार्ब से ज्यादा इफेक्टिव है इन मानों में कि जहां ब्रैटा कार्ब काम छोड़ दे वहां ये टेक ओवर कर लेता है, फायदा देना शुरू करे और मजीद काम ना करे, तो कैल्केरिया फ्लोर वहां से फिर ज्यादा बकिया मर्ज को दूर करने में उम्मीद है। ये जिनसी अज़ा में भी, ओवरीज हो या कहीं भी, अगर इसी किस्म का अमल दिखाई दे कि इंडोरेशंस हो जाएं, सोजन और वर्म, सख्त फुलफुली वर्म नहीं बल्कि अंदर जैसे मादा जम रहा हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा असर दिखाता है। तभी यूट्रिन फाइब्रॉइड्स में भी काम आता है ये। और फाइटोलाका की तरह, फाइटोलाका में बड़ी सख्त गुठलियां होती हैं दूध में, इसमें निस्बतन छोटी नोड्यूल्स टाइप की, और इससे वो पिछाना जाता है। सबसे बड़े पेड़े की तरह सख्तियां जो मिलती हैं वो ब्रायोनिया में मिलती हैं। ब्रायोनिया में बाज़ दफा तमाम ऑर्गन एक ही एक हार्ड सा नोड्यूल बन जाता है, या हार्ड नोड्यूल तो नहीं मगर
एक पाथी की तरह एक चीज हार्ड सख्त, वो एक ही ट्यूमर है जैसे। लेकिन इसमें फाइटोलाका में निस्बतन ज्यादा मगर बड़े बड़े, और कैलकेरिया फ्लोर में नोड्यूल्स, छोटी छोटी गुठलियां जगह जगह फैली हुई। ये सिल्ली मादा भी रखता है अपने अंदर और कैंसरस मादा भी रखता है, इसलिए यहाँ जिनको हिंजीरें कहते हैं लोग, खनाजीर भी कहते हैं उनको, ये जो दोनों तरफ चेन्स में गुठलियां बन जाती हैं, उनमें भी कैलकेरिया फ्लोर काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। और सिलीशिया से इसकी मुशाबियत है सपुरेशंस में, जैसा सिलीशिया पिघलाती है, पीप वगैरह बनाने में मददगार है, उसी तरह कैलकेरिया फ्लोर भी जब असर दिखाए तो ऐसे नोड्यूल्स वगैरह को पिघला देता है, उसमें पीप बना देता है। लेकिन सिलीशिया में और इसमें एक फ़र्क है कि सिलीशिया फॉरेन बॉडीज, यानी जो जिस्म का जो हिस्सा नहीं है, उनको पहचानती है और बड़ी शिद्दत से उनके खिलाफ जिस्म को तैयार करती है। इसलिए वो सुई का टुकड़ा हो या हड्डी का हो या कोई पुराना नोड्यूल हो, सिल के मादों की गुठलियां बनी हुई हों, उन सबको सिलीशिया बाहर निकालने में जिस्म को बड़ी ताकत के साथ तैयार करती है। यहाँ तक के बाद दफा अगर सिल की गुठली खून की रग के बहुत ज़्यादा करीब होगा क्या गुठलियाँ, तो ख़तरा होता है कि ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत, इसलिए डॉक्टर कहते हैं एहतियात करो उसमें। यानी छोटी ताकत में देकर असर देखने में कोई हर्ज नहीं, मगर ऊंची ताकत में अगर सिलीशिया दे देंगे तो फिर वो मरीज काबू में नहीं रहेगा, उसका मरज़ ठीक होने की कोशिश में जान से आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये एहतियात तो चाहिए, मगर ये मतलब नहीं कि उसको इस्तेमाल नहीं करना। और खांसी जो लेरिंग्स में खुजली से पैदा होती है तो बहुत दवाओं में है, और अक्सर खांसियों में भी ये अलामत मिलती है, इसलिए इस अलामत से नहीं पहचाना जा सकता। लेकिन आमतौर पर अगर लेरिंग्स में खांसी हो, खुजली और इरिटेशन हो और दूसरी दवाएं काम ना करें, तो एक दवा ऐसी है जो उसमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन सी है? मसलन फास्फोर, अव्वल मैंने देखा है रस्टॉक्स, अगर पूरी तरह होम्योपैथिक्स को ना भी हो तो बहुत से मरीजों में फौरी असर दिखाती है, लेकिन अगर उसके बाद फिर वो बार बार आए मरज़, तो इसका मतलब है रस्टॉक्स दवा नहीं थी, उसने अपनी सतही इलामतों की मुशाबहत की बिना पे काम दिखाया है। और दवाएं हैं, फास्फोरस है, उसमें भी उसी तरह खुजली बेचैन करने वाली, और उसका ज़्यादा जो असर ज़ाहिर होता है हंसने पर, ज़रा सी हंसी आई और बेख्तियार हो गया। फिर डोरोसरा है 30 में, जिसका स्पेज़म से ताल्लुक़ है बहुत, और काली खांसी में भी बहुत इस्तेमाल होती है। तो ऐसी खांसियों में चूँकि दरअसल वो इरिटेशन के नतीजे में किसी किस्म की खारिश और खराश के नतीजे में वहाँ स्पेज़म हो जाता है, सेंसिटिव हो जाती हैं सर्कुलर फाइबर्स, तो यूं करके मुट्ठी की तरह बंद होते हैं, उससे खांसी पैदा होती है। तो इसलिए उस सूरत में डोरोसरा भी बहुत मुफीद है। लेकिन डोरोसरा भी अगर पूरी तरह होम्योपैथिक ना हो, यानी सारे मरीज से ताल्लुक़ ना हो, कुछ देर काम करेगी फिर छोड़ देगी। तो लंबी खांसियों में जो बाज़ वबाई मर्ज़ों के साथ चलती हैं, मसलन आजकल जो फ्लू हुआ है उसके नतीजे में बहुत सी खांसियाँ फैली हैं, लंबा अरसे तक, कई महीने तक चली हैं। उनमें फिर या तो इनको अदल बदल कर एक दवा जिसने काम छोड़ दिया दूसरी शुरू की, फिर पहली आ गई फिर दूसरी आ गई, तो बहुत निगरानी करनी पड़ती है और अदल बदल कर मुख्तलिफ दवाएं देनी पड़ती हैं, रफ्ता रफ्ता वो ठीक हो जाता है। या फिर एक दवा ऐसी है जो अगर काम करे तो अकेली क्यूरेटिव भी हो जाती है इन केसेस में, वो र्यूमेक्स है, र्यूमेक्स, RUMEX। 3 दवाएं हैं इस नाम की मिलती जुलती, जिनको आप जहन में रख लें। एक है म्योरेक्स,
एक है र्यूमेक्स और एक है र्यूम। र्यूम है RHUME और र्यूमेक्स है RUMEX और म्योरेक्स है MUREX। इनके नाम मुशाबे हैं लेकिन दवाएं मुशाबे नहीं हैं और उनके इम्तियाजी फ़र्क आपके जहन में रहने चाहिए। बहुत से ऐसे असहाल के मरीज़ हैं जिनमें जो आम रोज़मर्रा की बेहतियातियों से एकदम असहाल आते हैं बड़े ज़ोर के साथ, और उसमें इंसान तलाश करता रहता है बड़ी बड़ी दवाएं एलो वगैरह इस किस्म की, और उसमें हल्की सी खटास भी पाई जाती है, ख़ास बू है रोज़मर्रा के बदपरहेज़ी के असहाल की। उसमें र्यूम सबसे अच्छी दवा है। और रोज़मर्रा के नज़लों के साथ खांसी जो क्रॉनिक भी हो जाए उसमें र्यूमेक्स चोटी की दवाओं में है। और म्योरेक्स है औरतों के लिए जब खून ज़्यादा आता हो और सुर्ख रंग का हो और एबॉर्शन की टेंडेंसी हो और एक्साइटेबल हो ज़्यादा, यानी असाब जो हैं वो बारीक तने हुए हों, ऐसी सूरत में म्योरेक्स बहुत इफ़ेक्टिव है। और अक्सर लंबे मेंसेस जो जान निकाल देते हैं, मरीज को बिल्कुल बेखून छोड़ देते हैं, उनमें जो मैं कम्बिनेशन देता हूं उसमें म्योरेक्स ज़रूर डालता हूं। म्योरेक्स, कैलकेरिया कार्ब और सबाइना, और ये तीनों एंटी एबॉर्टिव भी हैं। और ट्यूमर्स पर भी असरअंदाज होती हैं। इसलिए ऐसी ब्लीडिंग जिसका ताल्लुक ट्यूमर से हो सकता हो, लेकिन हर जगह होम्योपैथ के पास लेबोरेटरी टेस्ट के मौके मुयसर नहीं होते, सहूलतें मुयसर नहीं होती। इसलिए इस बहस में पढ़ने की बजाय कि ट्यूमर है या नहीं है, अगर ये 3 दवाएं शुरू कर दें तो मेरे इल्म में है कि जहां लेबोरेटरी से टेस्ट हो चुका था कि ट्यूमर थे और बड़े बड़े काफ़ी ट्यूमर थे, उनमें भी अल्लाह के फल से ये मुफीद साबित हुई। लेकिन इनके साथ बाज़ दफ़ा फास्फोरस मदद के तौर पर देना पड़ता है। और अगर ये फेल करे तो लेपिस को ना भूलें। औरतों के ट्यूमर में, उसमें यूट्रस के ट्यूमर में, और 30 या 200 में या तो इस्तेमाल करके देखी गई हैं। ये बाज़ ऐसी मरीज़ाएँ जिनमें मुस्तकिल लंबे अरसे से ये मुसीबत थी कि मेंसेस इतने लंबे हो जाते थे कि वो फिर दूसरी जगह अगले मेंसेस के करीब पहुंच के ठीक हुए और फिर शुरू हो गए, और फिर टेस्ट पर पता चला कि कुछ ट्यूमर्स की ग्रोथ भी है। तो उनको लेपिस दी गई और बिल्कुल सारा मरज दूर हो गया खुदा के फल से। उसमें ना ट्यूमर का निशान रहा, ना ये बीमारी बाकी रही। तो कैलकेरिया फ्लोर भी ख़वातीन के यूट्रिन ट्यूमर्स में मुफीद दवा है अगर बाकी इलामतें इसकी मिलती जुलती हों। और अक्सर जो ये ट्यूमर हैं इनके साथ दूसरी इंडोरेशंस, गले की, ये सब चीज़ें, तमाम मरीज़ का नक्शा दिखाई देता है, नुमायाँ होता है। लेकिन जहाँ मैंने बताया था कि कैलकेरिया कार्ब वगैरह के कम्बिनेशन काम आता है, वहाँ दूसरी इलामतें ये नहीं होती। शाज़ के तौर पर मिल भी जाएंगी, लेकिन जिन मरीजों को मैंने दिया है उनमें गाइडिंग सिम्टम ये नहीं थी कि उनके इंडोरेशंस हैं नाक में, गले में, एडेनॉइड्स हैं, ये वो कोई ऐसी इलामत नहीं थी, मगर उसके बावजूद ये दवाएं काम कर रही थी। तो इनका एक अपना दायरा है कैलकेरिया फ्लोर वगैरह का। इनके असर ज़्यादा ऊपर के हिस्से में नुमायाँ होते हैं और आँखों की इलामतों से, दांतों की इलामतों से, गले के इर्द गिर्द, गले के अंदर की इलामतों से ये पहचानी जाती हैं। तो अगर ये इलामतें मौजूद हों तो फिर इन्हीं से इलाज शुरू होना चाहिए। जो दवाएं बिल्कुल नज़र आ रही हैं कि ये हैं, क्योंकि जो अकेली दवा से इलाज है वैसा इलाज छट्टे का इलाज नहीं हो सकता।
बहुत शाज़ के तौर पर ऐसे कम्बिनेशन हैं जिन पर मैं कायम रहा हूं हमेशा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बड़ी वफादारी के साथ असर दिखाते रहे हैं। मगर अक्सर कम्बिनेशन जल्दी की वजह से बनाए तो कुछ देर के बाद पता लगा कि नहीं, बाज़ सालों में वो बेकार हो गए, बाज़ मुल्कों में बेकार हो गए और बाज़ मरीजों पर असर किया, बाज़ पे नहीं किया। तो उसमें फिर कम्बिनेशन बदलता भी रहा हूँ। तो बाज़ लोग हम वक्फ जदीद के पुराने नुस्खों में से निकाल लेते हैं और कभी वो दोबारा भी काम आ जाते हैं, मगर कम्बिनेशन के इलाज का दर हकीकत सिंगल रेमेडी के इलाज से मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भी मैंने देखा है कि बाज़ दवाएं दी जिनमें कम्बिनेशन था और मुझे यकीन था कि इन के अंदर वो अलामतें मौजूद हैं सब में मजमूई तौर पर जो किसी की मरज़ में मिलती थी, लेकिन काम नहीं किया। फिर मैंने उसमें से एक दवा को चुना जो सबसे नुमाया थी और फौरन काम किया। तो ये हैरत नगेज, इस पर फिर मैंने अपने ऊपर भी तजुर्बे करके देखे ताकि मजीद तसल्ली हो। एक दफ़ा मुझे एक सफ़र के दौरान पेचिश हो गई जो खूनी भी थी और साथ उसके साथ असाबी कमज़ोरी भी थी, और मैंने वो कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जिसमें काली फॉस मौजूद थी, लेकिन बिल्कुल काम नहीं किया। जब मैंने अकेली काली फॉस खाई तो जादू की तरह असर किया, उसने फौरन मर्ज ठीक हो गया, क्योंकि असाबी तनाव उसके पीछे पस मंजर में था और कम्बिनेशन में आके उसका जो असर है वो कुछ मुड़ गया अपने रास्ते से। दूसरी दवाएं बीच में मिलजुल गई तो जिस्म ने सही वाज़े पैगाम नहीं लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक दवा मिल जाए तो उस जैसी कोई चीज़ नहीं, और अगर कम्बिनेशन नाकाम हो जाए तो उसमें से फिर भी एक दवा तलाश की जा सकती है जो अकेली काम आ सकती है। इसमें लिखा हुआ है वॉट्स को भी ये क्योर करती है, ट्यूमर्स को भी क्योर करती है, और वॉट्स इसके ज़्यादातर लिम्स में यानी अपर लिम्स में भी होते हैं और लोअर लिम्स में भी, लेकिन बैक पर भी नुमाया हैं इसके वॉट्स, मुके, और हाथों पर भी होते हैं। हाथों पर मैंने एक और बात बताई थी, कौन सी दवा बताई थी? हैं? एंटीमोनियम क्रूड, ठीक है, और कॉस्टिकम भी गालबन उसकी ताल्लुक में बताया थी। तो ये दो दवाएं हैं, तीसरी इसमें जमा कर लें। पाँव पे बदबूदार पसीना किन किन दवाओं में पाया जाता है? हाँ? कौन सी दवाओं में? सुराइनम में, सल्फर में ज्यादा। सुराइनम में बगलों का ऊपर का पसीना ज्यादा है, पाँव का नहीं। और रसगुल्लाबरा भी जी, रसगुल्लाबरा वो तो पूरे जिस्म का। हाँ हाँ, पूरे जिस्म पर। पाँव चूंकि सुराइनम के बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए अक्सर वो पाँव पे इतना पसीना सुराइनम में नहीं, कभी मैंने नहीं देखा। लेकिन जहाँ गर्म हो पाँव और पसीना हो, ठंडा पसीना हो, उसकी वजह यह है कि वो गर्मी ने पसीना निकालने की वजह से पाँव को ठंडा कर दिया है। वो जो ठंड है वो अपनी इलामत नहीं बल्कि जिस्म की जवाबी कार्रवाई की इलामत है। सल्फर में ये होता है बाज़ दफ़ा कि पाँव पे पसीना है मगर पाँव ठंडे हो गए, तो दरअसल वो पसीने के नतीजे में जो मुस्तकिल पसीना निकल रहा है वो पाँव ठंडे होते हैं। सुराइनम में अगर पसीना आए तो वो गर्म भाप का पसीना होता है, वरना आता ही नहीं, बहुत कम पसीना होता है। और अब ये देखें पसीने के रद्द-ए-अमल कितने मुख्तलिफ लेकिन दवाओं के साथ गहरा मिजाजी ताल्लुक रखते हैं। सल्फर का पसीना उसको ठंडा करने की खातिर आता है, उस जगह को जहां गर्मी ज्यादा है उसको ठंडा कर देता है। सुराइनम का पसीना अगर ठंडा कर दे तो पहले ही मरीज ठंडा होता है, तो उसको उल्टी मुसीबत पड़ जाए। इसलिए सुराइनम के पसीने के साथ अल्लाह ने यह निज़ाम रखा हुआ है कि बॉडी गर्म रहती है और पसीना आता है, उसको ठंडा नहीं कर सकता, इसलिए भाप का एहसास पैदा होता है।
तभी डॉक्टर कहते हैं कि सोयानिक का मरीज जितना मर्जी ठंडा हो, जब ये गर्म होगा, लिपटा होगा तो और बुखार में फुकरा हो तो आप उस कपड़ा उठा के देखें तो अंदर से यूं लगे जैसे भाप निकली है, और गर्म पसीना और गर्म भाप, तो ये मिजाजों के साथ ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप दवाई के मिजाज को समझ जाएं, खूब बार बार पढ़ें जहां तक आपके जहन पर उसका मिजाज नक्श हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दवा को याद रखने में और उसके सही इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। मगर अगर लंबा अरसा छोड़ दें तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। इसे देर के बाद चेहरा नजर आए ना तो बाद मैं जोर लगा के देखता हूँ, अच्छा तुम फलां वक्त फलां जगह मिले थे। तो अब मैंने होम्योपैथिक पढ़ना छोड़ दी थी बिल्कुल, 20 साल के करीब, 15 साल कम से कम। तो अब जब आपको पढ़ाने लगा तो अब बातें याद आनी शुरू हुई हैं। बीच में गिरते गिरते सिर्फ चंद दवाओं तक मेरा दायरा रह गया था, मैंने कहा था कि बस ये भेजी जो नुस्खे, लेकिन अब खुदा के फजल से वो सारी दवाएं जो पहले से नक्श थी इसलिए याद रह गई हैं। बेस मौजूद था, जरा सी मिट्टी साफ हुई तो वो ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये जो बना रहे हैं हम इसलिए इसकी बड़ी शदीद जल्दी जरूरत है, ये अपना जो प्रिस्क्राइबर, क्योंकि मेरी डाक में होम्योपैथिक नुस्खों की डाक इतनी बढ़ गई है कि अब वो संभालना मुश्किल हो गया है। मैं तो जो खास ऐसे अमराज हैं जिनमें मैं समझता हूं कि मुझे जरूर प्रिस्क्राइब खुद करना पड़ेगा, मैं खुद करता हूं। बाकी कभी नईमा खोकर सपुर्द कर दिया, कभी बिशारत साहब के, कभी आप भी हिस्सा लेते हैं इसमें रशीद साहब प्रिस्क्रिप्शन, कभी सलीम अपनी तुक से चला देता है काम, माशाअल्लाह काफी डॉक्टर बना हुआ आजकल। और उनकी नासिर की तो जान लेने लगा था ये डॉक्टर, हमारा नासिर है ना पहरेदार, उसको 18 दिन बुखार आता रहा है और बताया नहीं, मैंने उसका चेहरा देखा तो बिल्कुल बुखार से जिस तरह वो उसका रंग सुर्ख खून जब मैला होने लग जाए तो भुसभुसा सा रंग आ जाता है ना, वैसा चेहरे पे रंग आ गया था। तो मैंने उसने बताया कि कोई इलाज करे, मैंने कहा तुम 18 दिन हो गए तुम इलाज, यानी इलाज तो मैं बाकायदा करा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, ये सलीम साहब मुझे दवाइयाँ दे देते हैं, आपके नुस्खे हैं। और नुस्खे हों बेशक, जो बीमारी जिद कर रही है 2-4 दिन के अंदर असर नहीं, जवाब नहीं देती, खासतौर पर फौरी जाहिर होने वाली दवाएं, उनमें बाकायदा केस पूरा हिस्ट्री बताकर फिर इलाज करवाना चाहिए, नुस्खे काम नहीं आएंगे। सलीम को भी मैं समझा देता हूँ। ऐसा याद है तुम जो अरशद ज़बाकी साहब के साथ सलीम का कसूर नहीं था, अरशद बाकी साहब का था। मुझे मेरे साथ रोजाना सैर पे जाते, बताते ही नहीं थे और सलीम से नुस्खा ले लेते थे। बीमारी दिल की थी और इलाज मेरे का हो रहा था, या और कुछ था, ये टांग पांव का क्या था, हाँ दर्दों का इलाज हो रहा था। वो फिर हो गया अटैक उनको। तो जब उन्होंने मुझे इलामतें बताई, मैंने कहा तो बिल्कुल वाज़ेह इस चीज की इलामतें थी। तो होम्योपैथिक में ये जो सिलसिला है इलाज का, इस तरह ये पूरा चल नहीं सकता। बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ रशीद साहब नुस्खा इनका, मेरे नज़दीक वो नहीं, कुछ और होना चाहिए। और नईमा खोखर के नुस्खे काफ़ी होशियारी से होते हैं, फिर भी इख्तलाफ पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पुराने मेरे देख देख के पढ़ के मेहनत करके अंदाज़ा लगाया मैं किस किस्म का इलाज करता हूँ। इसलिए अपना इलाज खुद शुरू करें। अब हर जगह होम्योपैथ मौजूद हैं MD, और मेरे लेक्चर सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुने तो अपने रिकॉर्ड तैयार करें और कोशिश करें कि मुकामी अब मरकज़ बन जाएं, जहाँ मुकामी लोग वहाँ के उनको उनसे डिस्कस करके नुस्खे लें। मेरे से तो निकल जाते हैं, इनकी तरफ से आते हैं, मैं चेक भी कर लेता हूँ, कभी नहीं भी कर सकता मगर अक्सर देखता हूँ। मुझे दफ्तर वालों ने कहा है कि अब हमारे पास ताकत ही नहीं रही जवाब देने की, इतने खतूत हैं, दुआइया भी, मसाइल वाले भी, इंतज़ामी भी, और सबसे अहमियत जो बड़ी है वो इंतज़ामी उमूर के खतूत, माली उमूर के खतूत, और इसके अलावा दीनी मसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले खतूत जिनमें जवाब देना होता है। उनको अगर ये उनको भी संभाल लें तो बड़ा कारनामा है।
क्योंकि स्टाफ बहुत थोड़ा है, और जो दवाइयाँ हैं उनमें मैं पढ़ लेता हूँ सारे, यानी पढ़ने का मुराद ये है कि जो खुलासा तैयार होता है वो सब पढ़ लेता हूँ, और फिर उस खुलासे में ही जो खुलासा तैयार करने वाले ज़हीन लोग हैं वो ऐसा इशारा कर देते हैं कि ये ख़त बेहतर है कि आप खुद पढ़ लें, और बाज़ दफ़ा मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ख़त पढ़ने वाला है। बाज़ फिर वाक़फ़ों के पुराने ताल्लुक़ वालों के ख़त, अजीज़ों के ख़त होते हैं बीच में, तो उनको अगर ऐसा जवाब चला जाए कि मैंने पहचाना ही नहीं, तो वो ठीक नहीं, तो उनको फिर मैं खुद हाथ से मार करके अलग कर देता हूँ, कभी नोट डाल दिया उसमें। ये जो खतूत हैं, अब प्राइवेट सेक्रेटरी साहब कल आए थे, अपने कलम डाल दिया था ज़मीन पे, अब हमें इन खतूत को संभालने की अब ताकत नहीं रही। कहते हैं बेशुमार डाक इकट्ठी हो गई है, क्योंकि ये खतूत मेरी तरफ से तो निकल जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह दूसरी सुबह शाज़ आती है, वरना एक दिन का काम उसी दिन मैं ख़त्म करता हूँ। और चूँकि प्रैक्टिस हो गई अल्लाह के फजल से, इसलिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर इनके लिए मुश्किल है जिन्होंने हाथ से जवाब लिखने हैं। तो इसका मैंने इनसे कहा कि कोई हल तजवीज़ करें, या तो ये है कि जो दुआ के लिए ख़त लिखने वाले हैं वो ये मुतमईन हो जाए कि ख़त मिल रहे हैं और दुआ हो रही है। असल मकसद तो ये है जवाब मिले न मिले शिकवे न पैदा करें, और कभी कभी जमात की मार्फत उनको हम इतला दे दिया करेंगे कि इन अब आपके खतूत मिल चुके थे फलां वक्तों में, और दुआ की कार्रवाई तो हो गई है। जहाँ तक नुस्खों का ताल्लुक है वो अब कम होने चाहिए, और मुकामी अहमदी होम्योपैथ्स और कुछ जो नोट्स उन्होंने तैयार किए हैं उसकी मदद से खुद इलाज करना शुरू करें। और इस सिलसिले में जो ये मटीरियल मेडिका हम तैयार कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। फैमिली प्रिस्क्राइबर नाम इसका रखा है, यानी घर का डॉक्टर, लेकिन दर हकीकत ये उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फैमिली प्रिस्क्राइबर्स के कार्ड्स यहाँ मुझे रशीद गर्मी साहब को काफ़ी शौक है, ये भेजते रहते हैं, वो देखे तो बिल्कुल नाकिस और निकम्मे निकले। उनमें रूटीन की चंद बातें तो हैं, लेकिन ये कि रोज़मर्रा की फौरी ज़रूरत को सही तौर पर पूरा कर सकें ये दुरुस्त नहीं है। तो पहले तो मैं कार्ड इसीलिए बनवा रहा था, जब हमने कार्ड बनवाने शुरू किए तो खुद यही रशीद साहब और बिशार साहब इन्होंने तजवीज़ें करनी शुरू की। हमने ये भी देखा था अपने तजर्बे में, ये भी देखा था, तो लिस्ट इतनी बन गई कि वो कार्ड बनाना नामुमकिन हो गया। फिर मैंने कहा जब हमने अब किताब ही बनानी है तो ऐसी किताब हो जो पूरी तरह समझा कर लिखी जाए, और किसी बीमारी के ज़ाहिर होने पर अगर कोई तालीम याफ्ता आदमी, मामूली तालीम का भी हो, ज़हानत से उसका मुतालिया करे तो उसके लिए आसान हो जाए उस दवा तक पहुँचना। और अगर वो फ़ायदा नहीं दे तो उसका मुतबादिल क्या है, वो ना खुदा फ़ायदा दे तो उसका मुतबादिल क्या है। इस गरज से ये हम तैयार कर रहे हैं। तो पहले जो मेरा वादा था कि 1 महीने में होगा, वो हमने तैयार कर लिया था। जिस चीज़ का वादा था वो चीज़ ही बेकार थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। अब इन सब में जिसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, उन्होंने जो काम शुरू किया हुआ है ये उस फैमिली डॉक्टर की तैयारी का काम है। अब इनको समझ आई है कि आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा बात है, और एक दफ़ा इसके बल खोल दिए जाएं तो फिर इंशाअल्लाह ताला इनको इलाज में बहुत सूरत पैदा हो जाएगी। समझ गए हैं मकसद? इसलिए अब बाकी सबको मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सलीम तो कहता है कि अब मेरे पास इतना भी वक्त नहीं रहा कि मैं छपे हुए नुस्खे बस डाक में डाल दिया करूँ, और ठीक है बिल्कुल। एक और मुश्किल ये दरपेश है, उसके लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, और जो सुनने वाले यहाँ इंग्लिस्तान में हैं उनको ख़ास तौर पर पेश नज़र हैं, और यूरोप में भी जिनको दिलचस्पी हो इस काम में मदद देने की, उनको मदद देनी चाहिए। हमारा डिस्पेंसिंग का काम भी अब ब्रेक डाउन हो गया है कम्प्लीटली, क्योंकि इतनी दवाएं लेने वाले इंग्लिस्तान ही में आते हैं कि उनके लिए अब फुल टाइम एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत पड़ गई है। वक्फ़े जदीद में तो हमने फिर बना ली थी, क्योंकि पहले मैं खुद डिस्पेंस करता था, वो नामुमकिन हो गया था। फिर ऑनररी तौर पर रखा, वो भी फिर बात बनी नहीं।
फिर उनको ज़ायद वक्त देकर हमारे मजदूर शहीद होते थे, बेचारों ने बड़ी मेहनत की, वो दफ्तरों के बाद रात तक डिस्पेंसिंग का काम किया करते थे। अब वो फुल टाइम डॉक्टर हैं, उनके साथ एक डिस्पेंसर भी गालिबन है, क्योंकि उनका मिजाज ये नहीं कि खुद ही दवाइयाँ बना के दें। अब मुश्किल ये है कि यहाँ का काम भी अब संभाला नहीं जा रहा, और आते हैं दोस्त ख्वातीन मर्द, उनको दवाइयाँ अगर ये कहा जाए कि खुद बाजार से लो, तो एक तो बड़ा जुल्म है, क्योंकि यहाँ बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं और हम दवाएं बढ़ा लेते हैं आराम से, तकरीबन मुफ्त में वो दवा मुहैया हो जाती है। और दूसरा ये मुश्किल के वक्त का मसला, यहाँ अगर उनको लिखें जो यहाँ की बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनमें प्रॉब्लम यह है कि वो कई बार एक हफ्ता ले लेती हैं। उनको खत लिखें, फिर डॉक्टर को प्रिस्क्राइब नुस्खा भेजें, या हमारे करीब कुछ बन गई हैं ऐसी बन गए नहीं हेल्थ सेंटर्स में कह रहा है, हेल्थ सेंटर्स जो ये भी काम शुरू कर रहे हैं साथ, और जो रेगुलर केमिकल फार्मेसीज हैं, मैं एलोपैथिक फार्मेसीज वो नहीं गालिबन देती, कोई देती हैं, वो भी मंगवा देती हैं हुजूर, मंगवा देती हैं। वही मंगवाने वाला झगड़ा तो फिर भी रहा ना, 2-3 दिन लग जाते हैं। मंगवाने का झगड़ा तो फिर भी रहा। कुछ रखी हुई क्या? अब उन्होंने ये बूट्स वालों ने तो बहुत मेडिसिन रखी है होम्योपैथिक की, लेकिन लो पोटेंसी रखी हुई हैं, बहुत छोटी पोटेंसी में, केमिस्ट ने भी रखी हुई है जी, 30 तक है, 30 तक, 30 तक, और महंगी मगर होंगी, महंगी है जी, एक बॉटल 375 की मिलती है, 375 की जी। हालांकि वो आपको 5 पैनी में यहाँ से मिल सकती है, यानी हम तो पैसे 5 पैनी नहीं लेते, मगर 5 पैनी से कम में वो दवा, आपकी जरूरत की दवा 1 पैनी में भी बन सकती है असल में, क्योंकि अगर एक मरीज की फौरी जरूरत है तो 1 पैनी में जितनी मीठी गोलियां आती हैं उतनी उसके लिए काफी हैं, इसलिए बहुत ही सस्ता इलाज है। लेकिन इसकी डिस्पेंसरी बनाना और डिस्पेंसेशन का काम संभालना, ये मसाइल हैं। इसलिए मैंने सोचा था, इनको मैंने कहा कि अपनी एक प्लानिंग करो, जिस तरह हमारे बाज़ ख़वातीन होम्योपैथ सीख रही हैं, उसमें मदद दे रही हैं, ख़तो किताबत के लिए सेल्स बन गए हैं, एक इंडिपेंडेंट सेल कायम कर दिया जाए जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को संभाल ले। उसमें इंडस्ट्री इसलिए मैंने कहा है कि हमने नई दवाएं भी बनानी हैं, और उनके लिए भी हमें ज़रूरत है वक्त की और आदमियों की जो समझ के मुझसे नई दवाओं के तरीके सीखें। दूसरा, वो फार्मास्यूटिकल हमारे डिस्पेंसिंग का काम भी करें तमाम तर। और अब जलसा आ रहा है, जलसे पर मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसे तमाम मुल्कों में जहां अब तक होम्योपैथी का शऊर पैदा हो चुका है, वही मरकजी ऐसी डिस्पेंसरी या दवाओं का बैंक बना दिया जाए, जिसमें 2 मकासद हों। एक ये कि जो दवाएं हम अब तक हमारे मटीरियल मेडिका में नहीं बल्कि उसमें डिस्पेंसर में शामिल हो गई हैं, फैमिली क्या कहना उसका नाम क्या रखा था, प्रिस्क्राइबर में, फैमिली प्रिस्क्राइबर, वो दवाएं अवेलेबल भी हों फिर, वरना अगर फैमिली प्रिस्क्राइबर में उन्होंने पढ़ी तो बाद ऐसी दवाएं हैं जो पाकिस्तान में भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सी नई दवाएं भी उसमें मैंने शामिल की हैं, जो मुख्तलिफ किताबें जो बाज़ रशीद साहब ने दी, बाज़ कभी डॉक्टर हमदुल्ला ने सजेस्ट किया, और भी लोग मदद करते रहते हैं। तो ऐसी रेयर दवाएं हैं जो इंग्लिस्तान में मिलती हैं, वो भी वक्त लेती हैं, वो मुश्किल से मुहैया होती हैं। उनको बढ़ाकर सब दुनिया में फैलाना पैसे के लिहाज से कोई मसला नहीं, वक्त के लिहाज से है। और अगर वो प्रिस्क्राइबर पहुंचा हो और दवाई मिली ना तो फायदा क्या, और जब तक वो दवाई ढूंढेंगे कई मरीज मर चुके होंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम साथ ही उससे मिलती जुलती होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी मुहैया करें। उसके लिए मुझे चाहिए कि जलसे से पहले एक इंडिपेंडेंट टीम हफीज भट्टी साहब की निगरानी में काम शुरू कर दे। क्यों हफीज साहब तैयार हैं या नहीं? हाँ जी। देखा किस तरह औरतें सबको ले जाती हैं अपने बुद्धू माल मर्दों पर। ये आप मुंह खोल रहे थे, मैं बासी लेने लगे हैं।
हैं? आप देखें आपकी बेगम बढ़ गई आपसे सब हैं? किस चीज में? कि आप हुक्म है और मैं तैयार हूँ। नहीं वो तो उन्होंने उनको कब शक, उन्होंने तो कहाँ से आगे तैयार हैं ये इनको बताना नहीं आता, यही कहा था ना तुमने हैं? मेरे मुंह से एकदम निकल मेरे मुंह से इसको घबराहट शुरू हो गई थी कि फौरन क्यों नहीं कहते आप, यही बात थी ना। जी, बिल्कुल। हाँ बेख्तियार नहीं, हाँ यस ठीक है। तो अच्छा आप संभालें, मुझसे समझ लें, एक पूरा वर्किंग सेल एक जगह आपके लिए होनी चाहिए, वही सारी दवाएं और जो दवाएं अवेलेबल हैं हमारे मटेरियल कमेडिका में जो आने वाली हैं, मटेरियल कमेडिका में नहीं इसमें प्रेस्क्राइबर में, उस पर नजर डाल के उनकी लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने, क्यों जी? जी बनी हुई 190 कितनी दवाएं हैं? 80 के करीब है। 180 करीब, उसमें कोई 20-25 का और इजाफा हो जाएगा। तो अगर 210 या 220 दवाएं हों तो इन 220 दवाओं की बुनियादी ताकतें जो हम समझते हैं कि इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जाए तो फौरी जरूरत हल हो जाती है, सिर्फ वो मुहैया करेंगे, सारी ताकतें नहीं। तो उसके लिए 50 कैबिनेट्स बनाने पड़ेंगे और ये भी जायजा लेना होगा कि ये बने बनाए बाजार से कोई ऐसे बक्स मिल जाएं या इस्तेमाल शुदा बाज़ चीज़ों के चॉकलेट के बक्स होते हैं बाज़ दूसरे, उनमें अगर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए तो उसके लिए आपके साथ मुशीर के तौर पर ये असलम साहब हैं, वो काम दे सकते हैं। क्या असलम खालिद साहब और उनके खुसर, वो बहुत माहिर हैं चीज़ों के बनाने में। वालिद, आई एम सॉरी, हाँ वालिद, उनसे पूछ लें। और बेहतर यही है कि इस काम को प्रोफेशनली इकट्ठा तैयार करवा लिया जाए, वरना उनके पास इतना वक्त नहीं हो तो एक एक डब्बा तैयार करें। 50 अगर डब्बे बनवाने हैं प्रोफेशनली तो लाइट वेट डब्बे हों, ज्यादा से ज्यादा अगर लकड़ी इस्तेमाल करनी हो तो वो प्लाई की हल्की लकड़ी, और उसके किनारों पर भी ऐसी टेप्स लगा दी जाएं कि खूबसूरत एंडिंग हो जाए, वरना वो भूरने लग जाती है। फिर उसके अंदर डिजाइन करके कि किस तरह दवाओं को खाने बनाना है, उस किस्म की चीजें डिजाइन करके इकट्ठी प्रोफेशनली तैयार करवा ली जाएं। और अगर 100 आप ऐसे डब्बे बना लें जिनमें 100 या 110 दवाएं फी डब्बा हो तो हमारी 220 दवाओं का जो अंदाजा है उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो 2 डब्बे फी मुल्क, अगर आप 50 मुल्कों के लिए तैयार करें तो 100 डब्बे चाहिए, अगर 100 के लिए एहतियातन तैयार कर लें तो 200 चाहिए। और उससे फिर आगे जो यहाँ इंग्लिस्तान के लोग हैं वो फिर अपनी जमातों के लिए खुद तैयार करवाएं, और हर जमात में वो किसी जगह किसी एक होम्योपैथ के पास या मरकजी जगह में वो मौजूद होना चाहिए, ताकि जब हम नुस्खा भेजते हैं तो यह ना लिखें कि हमें दवाई भिजवाएं। और यही बाकी मुल्कों के भी लिए मशवरा है। अफ्रीका में गाना में हमारा निज़ाम मौजूद है लेकिन हैफेजेड काम कर रहा है। हालांकि ज़फ़रुल्लाह साहब उनकी बेगम दोनों होम्योपैथ हैं और बहुत कामयाबी से उन्होंने होम्योपैथिक को वहाँ इस्टेब्लिश किया है, बिल्कुल सिफर थी होम्योपैथी, और अब वो बड़े बड़े अस्पतालों के बराबर आमद भी हासिल कर रहे हैं, हालांकि बहुत मामूली फीसें लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है, वो भी फिर आगे डिस्पेंसर रख रहे हैं। लेकिन उनको मैंने इसलिए नहीं भिजवाया था सिर्फ कि गाना के मरीजों का इलाज करें सिर्फ बराह रास्त, ये था कि सारे अफ्रीका की दवाओं की ज़रूरत पूरी करें। इस सिलसिले में उन्होंने खुद ही मशीनें ईजाद की हैं, गोलियां बनाने वाली, दवाओं की डिब्बियाँ वगैरह बनाने वाली, कई बहुत सारी बातें, बड़े ज़हीन हैं दोनों जो मियाँ बीवी। तो बुनियाद तैयार है, अब ये अगला काम बाकी है। उनको हम ये सब दवाएं भिजवाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसको अल्कोहल से अपना खुद पूरा करते रहें कमी, और सारे अफ्रीका के लिए डब्बे फिर वो तैयार करवाएं, समझ गए, कसरत के साथ। लेकिन सरदस्त फौरी जरूरत के लिए हम अफ्रीका के मुल्कों को एक एक डब्बा भेज देंगे। बाकी वहां आम करना, मुख्तलिफ जमातों में रखवाना, मजीद जो प्रोलिफरेशन है इसकी, उसके बगैर सही मानों में हल नहीं हो सकता।
क्योंकि जो बैकवर्ड ममालिक हैं उनमें फासले भी बड़े हैं, गरीबों के लिए ना ये कि डाक में ख़त लिख सकें, उनके गिरदो पेश जो कोई भी लेबॉरेटरी या कोई दुकान ऐसी नहीं है जहां एलोपैथिक दवाएं भी मिलती हों, छोटी मोटी शाज के तौर पर मिलती हों। तो वहाँ के जो मुरब्बी हैं, जहाँ जहाँ भी मुरब्बी हैं या मिशन हैं, वहाँ अगर हम दवाओं के मराकज़ बना दें तो इंशाल्लाह सब दुनिया के लिए सिर्फ मर्ज़ की तशख़ीस और दवाओं तक पहुँचने का निज़ाम ही नहीं बल्कि दवाएं भी मुहैया हो जाएंगी और रुपया बहुत बचेगा इसमें। अमेरिका ही में जो अहमदी इलाज पर खर्च करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह बेशुमार बहुत से ऐसे अखराजात हैं जिनको आसानी से बचाया जा सकता है और करोड़ों रुपए की बचत है सब दुनिया में इलाज पर। जमात अहमदिया के जो सिर्फ जमात अहमदिया के मरीज ये लें, हालांकि हमारा फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचेगा, तो मेरा ख्याल है 1 अरब रुपया शायद खर्च होता हो इलाज पर, शायद ज़्यादा ही हो, क्योंकि महंगे मुल्कों में ज़्यादा, गरीब मुल्कों में निस्बतन कम, मगर वहाँ भी खाल उधेड़ने वाला ज़रूर है। इलाज हर जगह रफ्ता रफ्ता कसाबी में तब्दील हो रहा है और खाल उधेड़ने के स्पेशलिस्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स। और गरीब आदमी की जब खाल उधड़ती है बेचारा अंदर से ना खून भी नहीं, अंदर खाल भी उधड़ जाए तो बड़ी मुसीबत है बेचारे के लिए। तो बाद मुझे मरीज कहा करते थे कि हमने तो दवाई का जब कीमत पूछी तो हमने कहा हम उस तरह जो मरना पैसे देकर, तो बगैर पैसे दिए क्यों ना मर जाए। बहुत गुर्बत है और इलाज फिर जरूरी नहीं कि आसान इलाज सबके लिए गरीबाना मुहैया हो, क्योंकि बाद इलाज बड़े महंगे हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ये बात सलाहियत थी कि उन्होंने गरीबों के लिए अलग नुस्खे बनाए हुए थे, अमीरों के लिए अलग, और दोनों के बड़े अच्छा काम करते थे। एक दफा दो ऐसे मरीज इकट्ठे हो गए तो आपने डिस्पेंसर को एक को नुस्खा लिखाया जो मसलन 500 रुपए में उस जमाने में बनता था, और उसी मरज के लिए एक आदमी को 2 पैसे का नुस्खा लिखवा दिया। उसने पूछा ये क्या मेरी दफा आपने कहा तुम्हें खुदा ने तौफीक बख्शी है तो महंगी दवाएं ले सकते हो, ये गरीब है इसका भी तो इलाज खुदा ने रखा हुआ है। तो इलाज गुर्बत में भी मुमकिन है अगर गरीबाना इलाज मुहैया हो और मौजूद है, तो मुहैया करना हमारा काम है। लेकिन मुहैया करने में भी अल्लाह के फजल से हम जो इलाज मुहैया करेंगे उसमें अमीर गरीब एक सफ में इकट्ठे हो जाएंगे सब। बीमारी में हमारा तो गुर्बत का ये दूसरा कदम है ना, अगला कोई फर्क नहीं रहेगा। एक दफा एस्टैब्लिश हो गया फिर लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मगर हकीकत यह है कि अभी भी जो तजर्बे हो रहे हैं उनमें पता चलता है कि बाज़ अहमदी जो होशियार हैं अल्लाह के फजल से, जिन्होंने काम शुरू किया है, बिल्कुल सिफर से सफ़र शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे तजर्बे शुरू कर दिए हैं और बहुत मशवरे बाद ऐसे मुझे भी भिजवा देते हैं जिससे मुझे ख्याल आता है कि ओह मैंने तो ये पोटेंसी इस्तेमाल नहीं की थी, इसको भी करके देखना चाहिए। अब लईका शाहिदा हैं हमारी एक नई बनने वाली डॉक्टर वहाँ गैम्बिया में, डॉक्टर लईक हैं जिनकी बेगम है, एक और नाम है उनका, हैं लईका शाहिदा लईक या शाहिदा लईका, अच्छा शाहिदा लईक हैं, मुझे तो शाहिदा लईका याद है। क्यों जी किसी को याद है नाम उनका? हैं? हाँ आप बताएं। लईक है, अच्छा शाहिदा लईक साहिबा उन्होंने मुझे खत में तफसील लिखी है कि आपने ये नुस्खे दिए थे, इस तरह खुदा के फजल से हैरत अंगेज तौर पर औरतें बच्चे की ज़च्ची के मौके पर पैदाइश के वक्त बच गईं और हमारे उनके मियाँ को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो आखिरी कामयाबी उन्होंने लिखी है वो ये है कि लईक मेरे मरीज बन गए हैं उनका मैं इलाज करती हूँ अल्लाह के फजल से। और एक उनका मशवरा वो भी तजर्बे में अब मैंने शुरू किया। मैं आमतौर पर बच्चे की बच्चा ना होने के इलाज में पल्स्टिला 30 या 200 देता रहा हूँ। तो उनका ये तजर्बा है कि 1000 में दी जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक उन्होंने तजर्बा बताया कि कोलोफाइलम
جو میں نے کہا تھا نا کہ بچے کی دقت ہو پیدائش کی خاص علامتوں میں، اس میں فوری فائدہ دیتی ہے. کہتی ہیں 2 یا 3 جتنے بھی انہوں نے عورتیں دیکھی ان میں سے چند کو تو فوری فائدہ دیا، لیکن ایک کو بالکل ذرہ بھی فائدہ نہیں دیا اور بھی پوٹینسیاں دے دیں. اصل میں انہوں نے شاید پورا وہ لیکچر نہیں سنا، اس میں نے بتایا تھا کہ ایسے موقع پر جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ جائے، دردیں ہوں اور بچہ باہر نہ آئے، تو وہ جو منہ بند ہوتا ہے اس میں ایک دوا کولوفائلم ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں. ایک دوا کالی کارب ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں. ایک دوا سیمیسیفیوجا ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں. ایک دوا جلسیمیم ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں. ایک دوا پلسٹیلا ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں. تو 5 یا 6 دوائیں جو بتائی تھیں ان کے اندر ان کو تلاش کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر اتنا لمبا جھگڑا نہ ہو تو میرے نزدیک کولوفائلم اگر فیل کرتا ہے تو آرنیکا اور جلسیمم 200 ملا کر دینے سے بہت سے مریض اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اور باقی چند کیسز بچیں گے. اور سیمیسیفیوجا کی پہچان تو اتنی صاف ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دردیں یہاں سے اتر کے دائیں طرف بائیں طرف چلی جاتی ہیں اور پہلوؤں پہ وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہاں سپیزم پیدا کرتی ہیں. اور کالی کارب کی دردیں کمر کو زیادہ پکڑتی ہیں اور اگر نیچے اترتی ہیں تو ران کے باہر کی طرف یا سامنے کی طرف. اور کولوفائلم کی دردیں ران کے اندر سے چلتی ہیں. ان کا مختلف اعصابی رستوں سے تعلق ہے اور جن رستوں پر یہ چلتی ہیں اس سے پہچانی جاتی ہیں. ہر شخص کا ایک خدا تعالیٰ نے ایک طور طریق چلنے کا رکھا ہوا ہے، دعاؤں کا بھی ہے ایک. ان کے اس طور طریق کو پہچان لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. اور بھی بہت سے مریض تجربے کرتے ہیں، مجھے اطلاع کرتے ہیں، پھر ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. آرسنک کا میں نے بتایا تھا کہ رات کو جو بچے پیشاب کر دیتے ہیں، بعض اور دوائیں جو لکھی ہوئی ہیں ایکویزیٹم وغیرہ وہ بالکل کام نہیں کرتی. شاید ہمیں پوری طرح اس کا طریقہ نہیں پتا، مگر ہالینڈ میں ہماری وہ حمید صاحب کی بیگم نے تجربہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں آرسنک سے بہت فائدہ ہوا، سب ٹھیک ہو گئے ہیں، یا ایک ہی یا 2 جتنے بھی تھے ان کو آرسنک استعمال کرنے سے رات کا پیشاب ٹھیک ہو گیا. تو بعض وجوہات اور ہیں، بعض بیماریوں کی وجوہات اور ہیں. ان میں ہر بیماری کے لیے ایک دوا کام نہیں آ سکتی. اسی لیے جو ہم پریسکرائبر تیار کر رہے ہیں اس میں یہ پیش نظر ہے کہ ایک آدمی جب وہ بیماری کے راستے دواؤں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو لسٹ دیکھتے دیکھتے خود زیادہ پہچان سکتا ہے. اور سب سے اچھی پہچان مریض کو خود ہوتی ہے. تو جو بھی پریسکرائب کرے گھر میں یا احمدی ڈاکٹر فائدہ اٹھائیں، وہ خود بھی پڑھ لیں اور پھر احتیاطاً مریض کو بھی اس کو پڑھا سکتے ہیں کہ یہ 3 دوائیں میرے نزدیک ایسی ہیں، 4 یا 1 یا 2 جتنی بھی ہیں، تم دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یا ان کے اندر کون سی ہے تمہاری دوا. اس کے مطابق پھر ان کا علاج انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کلکیریا فلور ختم ہوا ابھی اتنی دیر کے بعد. کلکیریا فاس، یہ کلکیریا فاس کیلشیم اور فاسفورس سے بنا ہوا ہے اور اس پہلو سے یہ بہت گہری دوا ہے. چونکہ یہ بایوکیمک میں استعمال ہوئی ہے اس لیے ہومیوپیتھس نے اس کی طرف پوری توجہ نہیں دی اور اونچی طاقتوں میں جس طرح اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا زیادہ نہیں کیا گیا. لیکن کلکیریا فاس کا جو بایوکیمک استعمال ہے وہ بھی پوری طرح بھرپور نہیں ہے. اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے ایک کہ عورتوں کی بہترین دوست ہے یہ دوا، اور کلکیریا فاس کی بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو روزمرہ عورتوں کی بیماریوں میں پائی جاتی ہیں. اس میں کلکیریا فاس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس کا آغاز عورتوں پہ عمل درآمد میں بچپن کی دعاؤں کے علاوہ جب عورت بن رہی ہوتی ہے اس وقت
प्यूबर्टी में जो भी तकलीफ़ें हैं बच्चियों की, उनमें वो कैलकेरिया फास खिलाया जाए तो अक्सर मुफीद साबित होती है। दर्दें हो रही हैं, मेंसेस ठीक नहीं आ रहा है या लेट हो गए हैं, तो हर किस्म की तकलीफ़ों में कैलकेरिया फॉस प्यूबर्टी के वक्त, यानी जब औरत लड़की जवानी में दाखिल हो रही हो, उस ज़माने में उसकी बेहतरीन साथी बन जाती है। अब एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आमतौर पर ध्यान ही नहीं जाता कि अगर मेंसेस के दौरान उस उम्र में ठंड लग जाए, खा नज़ला हो या ना हो, लेकिन सर्दी लग जाए, तो मेंस्ट्रुअल तकलीफें जो शुरू होती हैं, दर्दें, बेकायदगियाँ, कम ज़्यादा होना, वो फिर सारी उम्र रहती हैं उसी तरह, जब तक कैलकेरिया फॉस से उसका इलाज न किया जाए। इसलिए हर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को सिर्फ उसकी उस वक्त की इलामतों से नहीं पहचाना जा सकता। बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि उसका पस मंज़र देखा जाए। तो अगर देर में इलाज हो तो दिमाग में आता ही नहीं कि ये इस लड़की औरत को जो 50 साल की है, तकलीफें हो रही हैं, उसको बचपन में सर्दी लगी होगी ना, उसको याद होगा। सॉरी। इसलिए ये याद रखें कि बच्चियों पर उनकी जवानी के उम्र में नज़र रखें। अगर उनको सर्दी लग जाए और मेंस्ट्रुअल तकलीफें शुरू हो जाएं तो कैलकेरिया फॉस फौरी इफेक्टिव है अल्लाह की फजल से, और उसके बाद फिर वो तकलीफें दोबारा नहीं होंगी। अगर कुछ बची हुई अगले मेंसेस पे ज़ाहिर हों तो वो फिर भी ठीक हो जाएंगी। इसके अंदर और सेमिसिफ्यूजा में जो रहम के अंदर स्पेज़म्स और कन्वर्शंस पैदा होती हैं मेंसेस के आगाज पर, और मेंसेस के दौरान कुछ तकलीफ रहती है, एक ऐसी पहचान है जो दोनों को मुमताज़ कर देती है। सेमिसिफ्यूजा में जितना फ्लो बढ़ता है तकलीफ बढ़ती है, और ये बिल्कुल अजनबी सी बात है। इंसान ये समझता है कि वो खून का फ्लो रुक गया है, इसलिए जब बहना शुरू होगा तो ठीक हो जाएगा। कैलकेरिया फ्लोर में उससे पहले, खून के फ्लो से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं और बहुत तकलीफ दे स्पेज़म्स होते हैं। बाद औरतें तो बिल्कुल समझती हैं कि एक अजाब में मुब्तला होती हैं बच्चियां, जो खासतौर पर लड़कियों में ये बात पाई जाती है, जब तक फ्लो शुरू ना हो जाए। जब एक दफ़ा खून बहना शुरू हो जाए तो फिर वो आराम से निजात मिल जाती है। उस दौरान मेंसेस में फिर तकलीफ उनको नहीं होती, लेकिन पहले और 1-2 दिन शुरू के कैलकेरिया फॉस उसकी चोटी की दवा है। हालांकि लोग आमतौर पर मैकफॉस की सोचते हैं जो स्पेज़म की दवा है, और मैकफॉस स्पेज़म की दवा इसलिए कहलाती है कि वो यूट्रस ही का नहीं, सारे जिस्म पर जहां भी स्पेज़म होगा उसमें मैकफॉस काम आ सकती है, अगर वो गर्मी से आराम पाता हो। अगर सर्दी से आराम पाता हो तो फिर कौन सी दवा है? और भी दवाएं हैं, एपिस भी है, बेलाडोना भी है, और सीकेल भी है, और ना सीकेल, हाँ सर्दी से आराम आएगा। और भी कई दवाएं हैं जिनमें सर्दी से आराम आता है और गर्मी से तकलीफ बढ़ती है। पल्स्टिला भी उनमें से है, और बेलाडोना बता चुका हूं, 2 दफा होती है वो। सल्फर का तो मुझे याद है कि बेलाडोना से मिलता है, उसमें भी शायद यही हो। बहरहाल नक्सवामिका में भी उसमें गर्मी से आमतौर पर आराम मिलता है। ठंड से आराम मिले तो उसमें ये सब दवाएं शामिल हैं। मैकफॉस को गर्मी से आराम मिलता है, और कैलकेरिया फॉस को भी ऐसी बच्चियों को टकोर करने से आराम मिलता है। इसलिए मजीद शुबा हो जाता है कि मैकफॉस होगी।
और मैकफास्ट मैंने देखी है कोई फायदा नहीं देती, बाज मरीजों में देती है, इस खास केस में फायदा नहीं देती, इसलिए कि वो कैलकेरिया फॉस है। तो कैलकेरिया फॉस खास जो जिनसी अज़ा हैं औरतों के, उनमें स्पेज़म पैदा करने में चोटी की दवा है, इसको याद रखें। और ग्रोइन्स में यूं नीचे उतरती है दर्द। इसमें जहां तक जिनसी ख्वाहिशात वगैरह का ताल्लुक है, इसका मुआवजना आपको प्लेटिना, ग्रेशियोला और ऑरिगेनम से करना चाहिए। प्लेटिना, ग्रेशियोला GRATIOLA, ग्रेशियोला और ऑरिगेनम ORIGANUM और प्लेटिना PLATINA, इनसे मुकाबला करें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ओवर एक्साइटेबिलिटी हो, उसको ठीक करना हो, जो बीमारियों के नतीजे में होती है, नॉर्मल नहीं है, तो ये दवाएं काम आती हैं। एक और अजीब इलामत इसमें यह है, जैसे बाज़ दफ़ा बच्चों को पेशाब करें तो मक्खद बाहर निकलता है और काफ़ी तकलीफ दह बीमारी है, जो और माएँ फिर बेचारियाँ उंगलियों से ठीक करके उसको वापस सेट करती हैं, वरना वो बच्चा बड़े तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। यही चीज़ अगर यूट्रस में हो और पेशाब करने से या बाज़ दफ़ा इजाबत से भी ये रुझान हो, तो कैलकेरिया कार्ब को फौरन इस्तेमाल करना चाहिए। फॉस को हाँ, कैलकेरिया फॉस पहली दवा आपके ज़हन में आनी चाहिए, फौरन दें और अकेली दें, पहले मिला के न दें। जी वक्त हो गया, अच्छा, तो इंशाल्लाह उससे जल्दी फायदा हो जाएगा, वरना फिर और भी दवाएं देखनी पड़ेंगी उसमें। अब इसमें जो क्लॉट्स मिलते हैं फ्लो में वो डार्क हैं, हालांकि फास्फोरस में सुर्ख हैं और कैलकेरिया में भी सुर्ख हैं, इसलिए कम्बिनेशन जरूरी नहीं हुआ करता कि जो आप तवक्को रखते हैं वही चीज पैदा करेगा। कैलकेरिया और फास जब आपस में केमिकल बॉन्डेज में आ जाती हैं, फास्फोरस और कैलकेरिया, तो इनके खून के क्लॉट स्याही माइल हो जाते हैं, गहरे रंग के हो जाते हैं। थ्रॉबिंग भी ये पैदा करती है और सफोकेशन ऑन स्लाइट एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग स्टेयर्स। ये मुख्तसर नोट्स मैंने इसके लिखे हैं, वरना कैलकेरिया फास के ऊपर काफ़ी लंबे नोट्स तैयार हो सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो नुमायां गाइडिंग सिम्टम्स है ये मैंने दे दी हैं, बाकी जो अलामतें मिली हैं सब किताबों में वो बहुत सी दवाओं में मुश्तरक हैं और कोई पहचान अलग नहीं है। तो ये फीचर्स इसके खास आप याद रखें तो इंशाल्लाह आपको कैलकेरिया कार्ब से बहुत फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। और अब मुझे उन्होंने बताया, उंगली उठा दिया कि वक्त ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।